Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution. This is your preschool online classes kids. Today's date is 16th August 2020 and day is Sunday. Hey kids, welcome to your class. And as you all know that we start our day and our class with recitation. So kids, today we will recite an English rhyme. For that, you have to open rhyme book and open the page number 6. Early to bed. So kids, stand up in your place wherever you are. Now I am going to recite this rhyme and you have to repeat after me with action. So let's start kids. Early to bed. Repeat after me. Early to bed. Early to rise. Early to bed. Early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Makes a man healthy, wealthy and wise. Kids, let's repeat one more time. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Kids, I hope you all have enjoyed this rhyme. So kids, just repeat it many times so that you can learn it well. Thank you. Hey kids, let's start our English oral class. Today we will learn phonetic A to J. A to J. Let's start kids. Mr. A says. Mr. A says apple means Mr. A कैसा साउंड करते हैं ए. Mr. A says apple. Repeat after me kids. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. B says ball. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. C says. Mr. C says cap. Mr. C says cap. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. C says cap. Now Mr. D says. Mr. D says dog. Mr. D says dog. Mr. E says. Mr. E says egg. Mr. E says egg. Let's revise kids. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. C says cap. Mr. D says dog. Mr. E says egg. Now Mr. F says. Mr. F says fish. Mr. F says fish. Mr. G says. Mr. G says grapes. Mr. G says grapes. Mr. H says hat. Mr. H says hat. Mr. I says import. Mr. I says import. And Mr. J says joker. Mr. J says joker. Let's revise kids. Mr. F says fish. Mr. G says grapes. Mr. H says hat. Mr. I says import. Mr. J says jug. Kids, this is your homework. You have to learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to your next class and that is English written. Kids, take out your English notebook and open the page where I have done the setting of 16 July 2020 and day is Sunday. Kids, in our last class, we have learned to draw the formation of G. G says goat, G says gun, G says girl, G says grapes. So kids, today we are going to learn to draw the formation of H. H says hat, S says horse, S says hen. So kids, let's start. First of all, as you all know that
we have to read this statement carefully. One man, two men. Hello, hello. एंड में H. इस तरह से हमारा H ड्रॉ कर लिया हमने. आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, वन मैन टू मैन. हमने क्या किया, दो मैन ड्रॉ किए, टू मैन ड्रॉ कर दिए, वन मैन टू मैन, एंड देन हेलो हेलो. इन दोनों ने आपस में हेलो हेलो कर लिया. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट. मैम ने आपकी नोटबुक में वर्क सेट कर दिया है, आपको उसी में वर्क करना है. एंड किड्स, you all know very well that we have to touch the upper and bottom line both carefully. So kids, let's start to draw. It is very easy to draw. One man, two men. Hello, hello. Make H. H says hat. Again, one man, two men. Hello, hello. Again, one man, two men. Hello, hello. Make H. One man, two men. Hello, hello. H. Again, one man, two men. Hello, hello. Make H. Kids, you have to color this hat too, okay? One man, two men. Hello, hello. One man, two men. Hello, hello. Make H. One man, two men. Hello, hello. Make H. One man, two men. Hello, hello. H. Again, one man, two men. Hello, hello. Make H. 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 Again, one man, two men. Hello, hello. Make H. Again, one man, two men. Hello, hello. Make H. Kids, this page is completed. Now come to the next page. Kids, as you all know that we have said this work. We have to complete this page. Write alphabets A to H. आपको क्या करना है बच्चों, A to H alphabets में आपको complete करना है. A to H alphabet लिख के. Kids, आपकी नोटबुक में मैम ने साइड में A to H alphabets लिख दी है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. फॉर्मेशन आप देख के करेंगे अच्छे से. So kids, now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, now this is the time for Hindi recitation. So let's start. One Hindi rhyme. Kids, open your rhyme book. Page number 30. इतवार. आज हम कौन सी पोएम पढ़ेंगे kids? आज हम पढ़ेंगे इतवार वाली पोएम. So kids, stand up in your place wherever you are, and I'm going to recite this poem, and you have to repeat after me with actions. So start kids. आज इतवार है. Kids, repeat after me. आज इतवार है, चूहे की बारात है. Repeat after me. आज इतवार है, चूहे की बारात है. शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे. शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे. किड्स, रिपीट वन मोर टाइम. आज इतवार है, चूहे की बारात है. शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Practice it well and learn it one more time. Thank you. Kids, let's start our Hindi oral class. Kids, today we will learn A se Aha Swar with the help of your book Akshar Vatika. Kids, open page number 2. We will start स्वर आ से आहा. चलिए बच्चों, तो हम आज आ से आहा स्वर पढ़ेंगे अपनी बुक की हेल्प से. तो हम स्टार्ट करते हैं. आपको अक्षर के साथ चित्र को भी
पहचानना है तो हम आपसे, अगर हमने आपसे अक्षर छुपाकर पूछा कि बच्चों ये कौन सा चित्र है, इसका पहला अक्षर क्या होगा, तो आपको उसका भी आंसर करना होगा। तो हम इन दोनों ही अक्षर और चित्र दोनों को ही अच्छे से पढ़ के याद रखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। छोटे आ से अनार, ये कौन सा अक्षर है बच्चों? छोटा अ। छोटे आ से अनार। बड़ा आ, बड़े आ से आम। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। छोटे आ से अनार, पकड़ो डाल, तोड़ो अनार, खाकर इसको बांटो प्यार। आ से अनार। बड़े आ से आम, आम फलों का राजा है, सबके मन को भाता है। बड़े आ से आम। अब पढ़ेंगे आगे दूसरा पेज टर्न करके। छोटी ई, छोटी ई से इमली। छोटी ई से इमली, ये कौन सा अक्षर है बच्चों? छोटी ई। छोटी ई से इमली। ई से इमली खट्टी कितनी, मुन्ना को भाती इसकी चटनी। बड़ी ई, बड़ी से ईख, बच्चों कौन सा अक्षर है? बड़ी ई। बड़ी से ईख, गन्ने को सब कहते ईख, बच्चों सीखो अच्छी सीख। छोटा ऊ, छोटे ऊ से उल्लू। छोटे ऊ से उल्लू, दिन भर सोया रहता उल्लू, रात को जागा करता उल्लू। बच्चों छोटे ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ, ये कौन सा अक्षर है बच्चों? बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊन, रंग बिरंगी प्यारी ऊन, मम्मी मेरा स्वेटर बुन। अब ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, ये कौन है बच्चों? री से ऋषि बाबा। री से ऋषि बाबा, सदा ध्यान में रहते ऋषि, बांटे ज्ञान और देते खुशी। री से ऋषि बाबा। अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 10। ए से एड़ी, बच्चों ये क्या है? कौन सा अक्षर है ये? ए से एड़ी, पैर के नीचे होती एड़ी, उचक उचक कर इमली तोड़ी। अब ये क्या, कौन सा अक्षर है बच्चों? ए। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक, दादाजी जब ऐनक लगाएं तभी उनसे पढ़ा जाए। अब है ओ। ओ से ओखली। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली। ओखली में माँ दाने डाले, कूट कर ही फिर उन्हें निकाले। ओखली में माँ दाने डाले, कूट कर ही फिर उन्हें निकाले। ओ से ओखली। औ से औरत। औ से औरत, सारे जग की जननी औरत, ममता की है मूरत औरत। ओ से ओखली। अब ये कौन सा अक्षर है बच्चों? इस पे देखो मम्मा की बिंदी लगी हुई है। अंग से अंगूर है ये। अंग से अंगूर, हरे भरे रसीले अंगूर, पकड़ो ले दौड़े लंगूर। अंग से अंगूर। अब आहा अक्षर खाली। आहा अक्षर खाली, बच्चों बजाओ ताली। आ से हा हा हंसता बच्चा, आहा से हा हा हंसता बच्चा, भोला भाला मन का सच्चा। भोला भाला मन का सच्चा। आ से आहा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? आ से लेकर आहा तक पढ़ा है। तो चलिए आज हम इसे रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पीछे का पेज टर्न किया, पेज नंबर 40, और उसमें हम आ से लेकर आहा तक पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। छोटी ई, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और आहा अक्षर खाली। बच्चों बजाओ ताली। Now kids, learn it well and recognize all objects well. Thank you. Hey kids, welcome to next class, and that is Hindi Written. Kids, take out your Hindi notebook and open the page where I have done the setting of 16 August 2020 and day is Sunday. Kids, in our last class, we have learned to revise many letters as
छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। हमने क्या सीखा था बच्चों अपनी लास्ट क्लास में? छोटा आ, बड़ा आ, सारी चीजों के हमने रिवीजन कर लिए हैं। अब हमें उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। तो बच्चों आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमें 4 पेज की एक्सरसाइज करनी है बच्चों। वेरी इजी, बहुत इजी है, आप जल्दी कर लेंगे। तो चलिए आते हैं पहली एक्सरसाइज पर। बच्चों अक्षर से अक्षर का मिलान करेंगे। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बच्चों, आप इसे बहुत जल्दी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सेम अक्षर से आपको बस मैचिंग करनी है। मीन्स अगर बड़ी ई लिखी है तो बड़ी ई आपको इस लाइन में ढूंढनी है कि सेम बड़ी ई इस लाइन में कहाँ छुपी बैठी है, तो वो बड़ी ई को हम उससे मैच कर देंगे, मीन्स उससे मिला देंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं। बड़ी ई इस लाइन में हमने ढूंढा, बड़ी ई ये है, इसको इसके पास मैच कर दिया हमने, इसको इससे मिला दिया। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों छोटा ऊ। छोटा ऊ किधर है? ये है ना, तो चलिए हमने इसको इससे मैच कर दिया। अभी नेक्स्ट देखिए छोटा अ, तो छोटा अ को छोटा अ से मैच कर दिया। अब लास्ट बचा है वो तो वेरी इजी, वो तुरंत मिल जाएगा, बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ को हमने मैच कर दिया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज तुरंत कंप्लीट हो गई बच्चों। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी चित्र देखकर पहला अक्षर लिखना है। बच्चों आपने कई बार चित्र बनाए हैं, वो चित्र में कलर किए हैं और अक्षर उसके साथ लिखे हैं। अगर हमने आपको एक पेज में अक्षर लिखने के लिए दिए हैं, दूसरे पेज में उसी का चित्र बनाकर दिया है, तो आप अच्छे से चित्र को पहचान जाते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ये बच्चों क्या बना है? अ से अनार। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं अ में हम पूरा मुंह नहीं खोल रहे, तो कौन सा बनेगा? छोटा अ। तो छोटा अ में तो सिर्फ 1 मैन बनता है। तो चलिए हम बनाते हैं करली वर्ली 3 N 1 मैन हेलो हेलो मेक अ हैट। ये क्या बन गया बच्चों? छोटा अ। हमने इसी चित्र के सामने छोटा अ क्यों लिखा? क्योंकि ये अ से अनार है और अ से शुरू होता है। तो इस चित्र का पहला अक्षर क्या हुआ? छोटा अ ये। अब बच्चों नेक्स्ट है ये छोटे ऊ से उल्लू। छोटे ऊ से उल्लू, ऊ तो उसके पीछे टेल तो रहेगी नहीं क्योंकि वो छोटा ऊ है, तो हम छोटा ऊ लाएंगे करली वर्ली 3 N 1 हैट। इस तरह से क्या बन गया बच्चों? छोटा ऊ। अभी नेक्स्ट क्या है? ये बड़ी ई। बड़ी ई से ई। बच्चों बड़ी में हमने आपको क्या बताया था कि उसके ऊपर क्राउन होता है, तो बड़ी ई ये बन गई। ये हमने क्या बना दिया? बड़ी ई। बड़ी पर क्राउन भी लगा दिया। अभी नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये बड़े ऊ से ऊन। तो बड़े ऊ से ऊन में हमने आपको बताया, जैसे आपने छोटे ऊ से उल्लू में क्या किया था, उसमें टेल नहीं दी थी। इसमें बस यही एक चीज अलग है कि हमने इसमें इसको टेल दे दी है। करली वर्ली 3 N 1 टेल एंड 1 हैट। और इस तरह से क्या बन गया? बड़े ऊ से ऊन। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब कम टू द थर्ड पेज। अब हमारा थर्ड पेज स्टार्ट होगा। थर्ड पेज में क्या है बच्चों? बीच का अक्षर लिखना है। अभी तक हमने इसके बाद के अक्षर करे थे, अभी हम क्या करेंगे? बीच का अक्षर लिखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। छोटा अ। छोटे अ से अनार। छोटे अ से अनार के बाद क्या आता है बच्चों? बड़े अ से आम। ये इसका बीच का अक्षर हुआ। और इसको चेक करेंगे कि बड़े आ से आम जो है वो बीच का अक्षर है कि नहीं। तो उसके लिए हमने देखा कि बड़े आ से आम के बाद क्या होता है? छोटी से इमली। मीन्स छोटा आ से अनार और छोटी से इमली के बीच में क्या आएगा? बड़ा से आम। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली। तो बड़े आ से आम के बाद क्या आएगा? छोटी से इमली। छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी से इमली। अभी नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। छोटी सी इमली। छोटी सी इमली के बाद क्या आता है बच्चों? बड़ी से ईख। और उसके बाद क्या आता है? छोटे ऊ से उल्लू। इसका मतलब छोटे ऊ से उल्लू से पहले बड़ी से ईख आएगी और छोटी से इमली से पहले बड़ी से ईख आएगी। तो बीच का अक्षर क्या हुआ? बड़ी से ईख। और बड़ी ई है तो हमने इसके ऊपर क्राउन भी लगा दिया। अभी नेक्स्ट देखिए छोटे ऊ से उल्लू। छोटे ऊ से उल्लू के बाद क्या आता है बच्चों? बड़े ऊ से ऊन। आपने ओरल में पढ़ा है छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि। तो बड़े ऊ से ऊन के बाद क्या आता है? री से ऋषि। तो री से ऋषि से पहले क्या आएगा? बड़े ऊ से ऊन ही आएगा। और छोटे ऊ से उल्लू के बाद भी बड़े ऊ से ऊन आएगा। तो हमने बड़े ऊ से ऊन यहाँ पे लिख दिया। करली वर्ली 3 N 1 टेल एंड 1 हैट। बड़े ऊ से ऊन। नेक्स्ट बड़े आ से आम। बड़े आ से आम के बाद क्या आता है बच्चों? छोटी से इमली। और उसके बाद क्या आता है? बड़ी से ईख। तो बड़े आ से आम और बड़ी से ईख के बीच में क्या आएगा? छोटी सी इमली। क्योंकि बड़ी से ईख से पहले भी तो छोटी सी इमली आती है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? छोटी से इमली। इसका फॉर्मेशन आपको पता है, ये 1 स्मॉल मैन मेक्स इट टर्न टेल 1 हैट। क्या बन गया? छोटी से इमली। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों 4th पेज पे। अब ये हमारा लास्ट वर्क है।
इसमें क्या करना है बच्चों, खाली जगह भरनी है, तो आपको बहुत इजी है, अच्छे से आता है। छोटे ऐसे अनार, उसके बाद क्या आता है बच्चों, बड़े ऐसे आम, उसके बाद छोटी सी इमली है। तो ये सीरीज से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, छोटे ऐसे अनार, फिर बड़े ऐसे आम, इसके बाद छोटी सी इमली। अब छोटी सी इमली के बाद क्या आता है बच्चों, बड़ी से ईख। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको पूरा सीरीज में मिलाया करने के लिए। बड़ी से ईख, हमने यहाँ पे बड़ी से ईख बना दी। अब देखिए बड़ी से ईख के बाद तो छोटे से उल्लू आता है, मतलब हम सही वर्क कर रहे हैं। फिर छोटे से उल्लू के बाद बड़े उसे ऊन, ये हमने बड़े उसे ऊन लिख दिया। उसके बाद री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे आना। ये क्यों मैंने लिख दिया है, क्योंकि आपने अभी इसका फॉर्मेशन नहीं किया है। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, री से ऋषि का फॉर्मेशन हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि री से ऋषि टफ है और आपको इसको ये आपको नहीं आता है। तो हम री से ऋषि बाद में करेंगे, पहले ए से एड़ी और ऐसे एना कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मतलब नेक्स्ट टर्न में हम क्या पढ़ेंगे, ए से एडी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। री से ऋषि हम गायब कर देंगे, क्योंकि ये बहुत टफ है, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बच्चों ये आपका वर्क कंप्लीट होता है। अब इसे अच्छे से करिएगा और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी अच्छे से करिएगा। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class, and that is maths. Then kids, take out your maths notebook and open the page where I have done the setting of 16 August 2020 and day is Sunday. Kids, in our last class we have learned to draw the formation of 8. Today we are going to revise the formation of 8. And kids, we have one more work to do, and that is exercise match the same number. Come to the first page. Firstly, we have to read this statement carefully. See, turn, and join make 8. See, turn, and join make 8. Okay, let's start. Make see, turn, and join 8. Make see means हमने पहले C बनाया, फिर यहाँ से turn लिया, and then you have to join. Make 8. Make C, turn, and join. Make 8. Kids, you have to remember this, that we have to touch the upper and bottom line both carefully, and the formation of 8 should not be drawn outside. Again, make C, turn, and join. Make C, turn, and join. Make 8. Make C, turn, and join 8. Again, make C, turn, and join. Make 8. Make C, turn, and join 8. Make C, turn, and join. Make 8. Again, make C, turn, and join 8. Make C, turn, and join. Make 8. Kids, now come to the next page. Where we have to complete this exercise. Match the same numbers. So it means हमको पहले क्या करना है बच्चों? We have to find the number. We have to find the similar numbers. Just like 7 है, 7 को हम क्या करेंगे? 7 से मैच करेंगे। हमें 7 सेम नंबर्स मिल गए, तो हमने उन्हें मैच कर दिया। Again 8 से मैच कर दिया। Then 2 then 3 से 3 को मैच किया, 4 से 4 को, and then 6 से 6 को। Okay, now I've done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, welcome back to next class, and that is conversation subject. Kids, as you all know that conversation is an oral subject. So today so in the subject you don't have to write anything in your notebook. You have to just learn it well. So kids, today we are going to learn another 2 questions, and that is, first is what is your class teacher's name, and second is what is your principal's name. Kids, as you all know that I am your class teacher. ओके, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, तो मेरा क्या नाम है, मेरा जो भी नाम है आपको अपने क्वेश्चन के आंसर में मेरा नाम लेकर आपको बोलना है कि आपकी क्लास टीचर कौन है, उनका नाम बताइए। तो आपको अपनी क्लास टीचर का नाम बताना है। सो किड्स, आई एम योर क्लास टीचर, सो टुडे यू हैव टू टेल योर क्लास टीचर नेम एंड योर प्रिंसिपल्स नेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट किड्स, लेट अस लर्न।
What is your class teacher name? Kids, if someone asks to you that what is your class teacher name, you have to say that my class teacher name is Miss. Why? Because your teacher is unmarried, so you have to say Miss. Okay, before her name you have to say Miss. My class teacher's name is Miss Shraddha Dwivedi, because my name is Shraddha Dwivedi and I am your class teacher, so you have to say that my class teacher name is Miss Shraddha Dwivedi. So okay, this is your first question. Learn it well. Repeat it. I'll repeat it again. What is your class teacher's name? You have to say my class teacher's name is Miss Shraddha Dwivedi. Okay? So kids, second question. If someone asks to you that what is your principal's name? आपकी प्रिंसिपल का नाम क्या है? तो बच्चों आप अपनी प्रिंसिपल का नाम क्या बताएंगे? So kids, आपकी प्रिंसिपल का नाम है मिसेस रोशनी कटियार, because she is married. So before her name, you have to say Mrs. You have to say Mrs. Okay, kids? Remember it. You have to say Mrs. Roshni Katiyar. So, kids, let us learn second question. What is your principal's name? आपकी प्रिंसिपल का क्या नाम है? तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? You have to say that my principal's name is Mrs. Roshni Katiyar. Kids, learn it well. Repeat it again. What is your principal's name? My principal's name is Mrs. Roshni Katiyar. Kids, let's repeat one more time. If someone asks to you that what is your class teacher's name, then you have to say that my class teacher's name is Miss Shraddha Dwivedi. And the second question is, what is your principal's name? Then you have to say that my principal's name is Mrs. Roshni Katiyar. बच्चों आपसे कोई पूछेगा कि आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि आपकी क्लास टीचर का नाम मिस श्रद्धा द्विवेदी है. एंड इफ समवन आस्क्स टू यू, जब आपसे कोई पूछेगा कि आपकी प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है बच्चों कि मेरी प्रिंसिपल का नाम है मिसेस रोशनी कटियार. So kids, now class is over. Learn it well. Thank you.